Okay, your boy is back apparently. Subscribe to my channel, man. I upload one video every 2 years. Also, there has been this weird thing going on जहाँ पे ये आधी धूप है आधा. The problem is I can't shoot inside my house because this is the kind of video where I believe I would be screaming a lot. और मैं घर में नहीं कर सकता because Sunday वाला दिन है and yeah, my family members are there, etc. So the problem here is मेरा कैमरा भी manual mode में for all those like camera connoisseurs and people are like what the fuck is this video quality वगैरह cinematic बोलते हैं लोडू अपने आप को वगैरह. The problem is my camera is in manual mode अभी और बहुत ज़्यादा contrast है between shadows and the light part. जब ये धीरे धीरे सूरज उगेगा, I don't know, ये नीचे जाना चाहिए ऊपर जाने, I think ये और ऊपर चले जाएगा so equalize हो जाएगा. और अगर नीचे आ जाता है और ये और ऊपर आ जाती है धूप, so I'll just equalize. I have like setting controls and everything. Anyway, today I was like showering. And then I was like thinking to myself, what is like the one thing that I can make a YouTube video on? And actually I've made like several videos, but I have like मैं edit करने के उसके आसपास भी नहीं आया अभी. So yeah, I'll edit those and I'll put something there. But for now, I was like taking a shower and you know the best idea is like shower लेते हुए आते when you're looking at your own willy. It's that amazing. I'm just saying that. Girls hit me up. Anyway, let's talk about like the whole school system and stuff. I'll just cut to the chase. I want to talk about CBSE schools, teachers and everything that I experienced with my school, my like education regime कह लो यार, ये CBSE, ICSE वगैरह जो भी है ये, like education systems जो है, like what I experienced in that. So yeah, we'll start with the education first of all. Like, okay, what are the subjects? Yeah, SST, maths, the subjects that are before 10th. I guess SST, maths, English, Hindi, and some other subjects that I'm probably forgetting, like very main subjects, science. Yeah. So I think ये सारे subjects हैं जो आप पढ़ते हो, and the thing with these is that I found अभी तक they don't teach you anything practical. Like, I understand the goal of those like, again, education systems and stuff, whatever you call it, like boards of education, के बच्चों को यार basic knowledge देनी है, and basic knowledge देने के बाद like वो किसी भी specialization में जा सकता है, and you don't know पहले वो कहाँ जाएगा and stuff. I understand, but what I've seen is कि कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाते हैं जो ज़्यादातर किसी भी specialization में ज़्यादा यूज़ नहीं आती है. Probably everyone would agree, कुछ चीज़ें बिल्कुल nonsense होती है जो आपको पढ़ाते हैं. For example, like most of it is in history. History आपको जो पढ़ाई जाती है बहुत outdated history है. Like anything that happens अभी आज हो गया और कल हो गया, like आज हुआ and then tomorrow if comes like आज क्या डेट है, for example like 13 मार्च है, 13 मार्च को like अभी रशिया और यूक्रेन वाला चल रहा है, let's just take an example of that. रशिया और यूक्रेन वाला चल रहा है and कल हो जाएगी 14th, तो आज वाली चीज़ हिस्ट्री हो गई, right? This is the basic logic with anything like historically related. तो अब हर चीज़ अब हिस्ट्री बन रही है तो यार अपडेट करो ना यार उसको. लाइक वी आर स्टिल रीडिंग अबाउट लाइक हड़प्पा के कटोरी चम्मच ये वो, भाई ये सिविलाइजेशन ऐसी थी, मेडिवल टाइम में ये होता था, मेडिवल के बाद या इट्स लाइक द आई डोंट नो, देयर इज अ बोर्ड मीटिंग CBSE वगैरह एंड CBSE इज लाइक भाई इस बच्चे संदीप, इस बच्चे को जाने नहीं देना, इसको सारे पेलियोंटोलॉजिस्ट बना के छोड़ने का, इसको पैंट तार, इसकी पैंट तार. सो दैट्स हाउ आई सी इट. लाइक दे वांट टू टीच kids, like उनका idea अच्छा है, their intentions are noble enough, but then the way that they go about it is like so weird. I've seen people who are like topping every subject, like भाई English, Hindi, maths वगैरह सब में 90 से कम भाई हमने लेना ही नहीं. 90 से कम आ गया तो मैम के पास जा के रोना कि मैम 89 दे दिए, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो, 90 से ऊपर नहीं आएंगे तो मम्मी ये नहीं करने देगी, मम्मी वो नहीं करने देगी, एंड मैम इज लाइक कितनी अच्छी रो रही है. एंड देन देयर इज यू एज अ गाय who's like looking at everyone else is like तुम भी ले लो मार्क्स, इट्स फाइन, अच्छा रोना है रो के ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है वगैरह वगैरह. एंड देन यू आर लाइक आई डोंट क्राई, आई हैव प्रिंसिपल्स, अगर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले तो मैं जाके मैम को बोल दूंगा कि मैम मुझे एक्स्ट्रा दे दिया आपने. that's the guy that I was. I know like most of the people aren't like that. People are like extra marks मिले तो ले लो, but there are some people, there are actually a lot of people who have certain principles who are like हमें रो के नहीं लेने मार्क्स. Okay, that's something that they won't do कि भाई इस तरीके से मार्क्स तो चाहिए ही नहीं. I love those people. But apparently our education system and our teachers don't. Teachers are like, अरे यार रो रहा है, it's fine, दे दो इसको. And I understand your position as well as a teacher. It is very hard to deal with बच्चों के emotional जो भी है ड्रामे वगैरह वगैरह. Because again, if you had enough money, अगर पूरे इंडिया में आप underpaid हो टीचर्स, and अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप उसको थेरेपी के पैसे क्यों नहीं पकड़ाते. But that's besides the point. What I am saying is कि most of the people are like, most of the kids are like रो वो के ले लो मार्क्स, चीटिंग करके ले लो. And then there are toppers जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, किसी को आंसर भी नहीं बताना, खुद भी चीट करना है जिससे मिल गया,
and they do everything, probably every fucking thing to like make sure मेरे marks maximum आ जाए, and then जब उनके marks आते teachers are like oh my god ये कितना पढ़ता है. 80 marks वाले भी उतना ही पढ़ रहा है जितना 95 या 99 वाला पढ़ रहा है. 99 वाले में थोड़ा सा दिमाग था, उसने क्या किया, इधर से आंसर देखा, साइड में से आंसर देखा, प्लस उन लोगों को जिनको उसने बोला था कि मैं तेरे को टेस्ट में आंसर बताऊंगा क्योंकि मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं और मैं ज्यादा पढ़ता हूं, उन लोगों का उन्होंने चूतिया काटा टेस्ट वाले दिन. उन लोगों को उन्होंने बोला प्लीज फक यू, मैं आज आंसर नहीं बता सकता हूं. एंड या दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ दे वेंट अबाउट इट. तो ये चीज दैट आई हैव नोटिस्ड हैपेंस लाइक वाइड स्प्रेड है, लाइक मेनी स्कूल्स एंड स्टफ, एंड आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने स्कोर किया है लाइक अच्छा स्कूल में, एंड देन दे आर लाइक लाइफ में इट्स लाइक यू गेट ब्रेन पॉइंट्स, और वो ब्रेन पॉइंट्स आपके लूज होते जाते हैं टाइम के साथ बिकॉज यू हैव स्टडीड सो मच. दिस इज मी टॉकिंग अबाउट टॉपर्स बाय द वे. सो स्कूल में आपने इतना पढ़ा, लाइक आपके 90 आ गए, 99 आ गए, लाइक हे भगवान हमारे सारे ब्रेन पॉइंट्स यूज हो गए, लाइक 1000 ब्रेन पॉइंट्स मिलते होंगे जैसे आपको पूरी लाइफ में, और उनका सारा कुछ यूज जाता है. एंड देन दे स्कोर रियली वेल. एंड कॉमन परसेप्शन ये है कि कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा होगा, टीचर की चाटता रहेगा वगैरह वगैरह, तो भाई उसका तो सब कुछ हो जाएगा. वी ऑल नो दैट वन स्टूडेंट जो टीचर के पीछे पीछे रहेगा बिकॉज उसको बाय द वे उससे भी मार्क्स चाहिए. गुड बुक्स में रहेगा तो शायद मार्क्स ज्यादा मिल जाए. मतलब दे यूज एवरीथिंग, एंड देन व्हेन दे गेट दैट दे डू दिस फकिंग डिजेनरेट थिंग वेयर दे क्लेम टू गेट दोस मार्क्स एंड देन बोलते ही रहेंगे भाई पूरी लाइफ. इट्स लाइक 4 या 5 साल बाद आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने 4-5 साल भी निकल चुके हैं, एंड देन दे लाइक मेरे इंग्लिश में बाय द वे 90 आए थे, एंड देन व्हेन यू टेल देम टू फॉर्म अ बेसिक फकिंग सेंटेंस इंग्लिश में जहाँ पे ग्रामर वगैरह बहुत बेसिक होगी, दे कांट डू दैट बिकॉज ऑफ कोर्स वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया. भाई साहब आपने तो सिलेबस में से पूछना था. आप हमसे पूछो लिटरेचर, आप हमसे पूछो ब्रजिंद्रा बुक कंपनी का 371वां पेज अगर हमसे पूछ लेते हो तो हम बता देंगे कि बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होती है. तब हम ये भी बता देंगे आपको कि हम आपको लेटर ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में ये आना चाहिए, देन बॉडी ये होती है, देन सैल्यूटेशन ऐसे लिखते हैं, वो सब हम लिख देंगे. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, इट्स लाइक सीबीएसई को भी पता है कि बच्चे कितने डम फक्स है. कभी कभी एप्लीकेशन क्वेश्चंस एक तो आती बहुत कम थे, और आते भी थे तो दे यूज्ड टू राइट हेडिंग्स कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि कोई डम टॉपर उसको देख के, क्योंकि टॉपर्स का दिमाग कभी कभी ऐसा चलता है, कुछ टॉपर्स लाइक दिस इज मी टॉकिंग अबाउट, I don't know what is the percentage, but I believe like 10 to 20% टॉपर्स एक्चुअल में दिमाग वाले होते हैं जो लाइक चीज़ों को समझ के लिखना पसंद करते हैं. देन उनका इंटरप्रिटेशन के बाद भी लिखा हुआ इतना सही होता है कि टीचर्स को मार्क्स देने होते हैं उस पर. दे आर लाइक ओके दैट्स रियली रियली गुड, एंड देन उनकी आंसर शीट्स वगैरह लाइक सर्कुलेट भी होती हैं इधर उधर. आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन दे आर सम डम फक्स जो क्या करते हैं, उनके भी ज्यादा आते हैं, वो भी सेम है, जो दिमाग वाले जितना मार्क्स ला रहा है उतना बिना दिमाग वाला भी ला रहा है. बट वो क्या करते हैं, दे जस्ट सी आर्टिकल 3A लिखा हुआ है. अच्छा जी, सिविक्स में हमने कुछ पढ़ा था यार आर्टिकल 3A के बारे में. अच्छा जी, अच्छा इसके 5 लाइन का पैराग्राफ था और ये बुक के ना लेफ्ट साइड में कोने में लिखा होगा. अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसकी जितनी भी लाइन थी साला चेप देना है. दैट इज आई फर्मली बिलीव दैट इज वाई सीबीएसई कभी कभी अपने पेपर्स के अंदर, एटलीस्ट हमारे टाइम में था, आई डोंट नो हाउ पेपर्स आर मेड नाउ बिकॉज आई डोंट हैव अ यंगर सिबलिंग, और मैंने किसी बच्चे का भी पेपर देखा नहीं रिसेंटली, बट सीबीएसई यूज्ड टू राइट समटाइम्स कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब, प्लीज लाइक इसमें दिमाग लगाना अपना, प्लीज डोंट राइट दैट सिविक्स का वो जो पीछे बुक में लिखा हुआ या चैप्टर में समरी या वो लाइट बल्ब बना देते थे जो सीबीएसई की बुक में डिड यू नो वाला सेक्शन के नीचे बहुत लंबा लिखा होता था, वो वाला मत चेपो. दैट्स देयर पॉइंट. विद टाइम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज एग्जाम्स का पॉइंट ये भी है कि आपसे मेहनत करवानी, आपसे रटवाना और उल्टी करवाना. That I don't even give a fuck about. That's like the dumbest shit that exams are designed around. But बहुत exams में एक चीज़ ये भी बहुत common होती है. They are trying to make you understand how to understand a question. That's what they're trying to make you learn, or they're trying to teach you कि question को समझना कैसे है, and then question के बारे में लिखना कैसे है. Many people have like trouble understanding because these are the toppers who do things like so dumb and say things like so stupid ahead in their life कि bro मुझे तो पढ़ना है इसलिए था so that like पता नहीं क्या cool बन जाऊँ मैं society में and stuff. Like I have actually met those people कि हाँ यार इसलिए पढ़ना था कि because it satisfies my ego and nothing else. उसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा करना नहीं था. We don't have a higher purpose. यार हमें मेडिकल इसलिए नहीं करना, हमें यार इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करनी, हमें इसलिए नहीं करना बिकॉज उनका कोई हायर पर्पस है. लाइक इन सब चीज़ों का आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप हो सकता है इन्वेंट करना चाहते हो, दैट्स अ हायर पर्पस. आपको मेडिकल करनी है, यू वांट टू सेव पीपल्स लाइफ, आपको लोगों की सर्विस में जाना है एंड स्टफ. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. सम पीपल गो टू आर्मी फॉर दैट रीजन कि हाँ यार हमें लाइक वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंपनी, पेट्रियोटिक स्पिरिट एंड एवरीथिंग. आई लव दोस थिंग्स. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. देन देयर आर सम डम फक्स हु आर लाइक हमने इतनी पढ़ाई की, सब किया, वी जस्ट वांटेड टू डू बिकॉज वी हैड दिस विनिंग स्पिरिट. हमें ना उस टाइम पे जीतना था. वी डिडंट रियली लाइक, हमें समझने का से ज़्यादा कोई मतलब था नहीं. एंड उस टाइम पे कर लिया यार थोड़ा बहुत. एंड नाउ दैट वी हैव डन इट, लाइक अब हमारा हो चुका है.
now there is no point, like अब हमें like we have to like have drugs, पिलाओ हमको बिठा के, ये है वो है, like they expect some kind of like reward from the world, ना कि यार हमने इतनी मेहनत की, and which is by the way मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा, मेहनत बहुत है, but they are like हमने इतनी मेहनत की and stuff, like अब हमें कुछ मिलना चाहिए यार इसका, like why is this drug not working as well as I thought it would, ना कि यार पढ़ूंगा तो भाई पूरी लाइफ बढ़िया निकलेगी. बेसिकली उनका शायद उनका भी चूतिया कट जाता होगा, जैसे घर वाले काटते हैं कि भाई 10वीं कर ले फिर आराम है, 12वीं कर ले फिर आराम है, नौकरी कर ले फिर आराम है. आराम कभी नहीं है. that's the point, that they don't tell you that, they give you like BT आपको इंस्टॉलमेंट्स में पकड़ाते हो, बिकॉज अगर आपको एक साथ BT पकड़ा दिया आप भाग जाओगे. they don't want that, they don't want you to run. what they want is कि इसको 2-2 साल के ना लारे लगाओ, इसको ये बोलो भाई अभी तेरा 2 साल बाद ना हो जाएगा यार, टेंशन मत ले, ये 12वीं का कर, अच्छी मार्कशीट आएगी, ये 12वीं के मार्क्स है यार जॉब में बड़े यूज होते हैं, ये 12वीं मार्क्स नहीं यार कॉलेज में बड़े यूज होते हैं, कॉलेज के मार्क्स नहीं यार जॉब में होते हैं यूज, जॉब के ना यार जो भी आप अचीवमेंट करोगे वगैरह वगैरह, इससे आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा. द प्रॉब्लम इज विद दैट होल अप्रोच, some kids actually buy it. Now I was like, okay, I did buy that too, I'll be honest, for some time, but बीच में आया, I was like यार ये तो कटते जा रहे हैं यार, no matter how much I work यार ये तो खिंचती जा रही है सड़क यार, और खत्म नहीं. और I was told यार 1 किलोमीटर और बचा, like this isn't gonna end anytime soon. Then at that point I decided कि okay, let's just do whatever you want to do and do things for a higher purpose. I'm not saying कि मैं दूसरों से better कर रहा हूँ, I'm not saying कि I'm better than everyone else and everyone should work according to how I work वगैरह वगैरह. That's not really my point. But what my point is about is the fact that people, some kids do it just for the sake of it, कि हाँ यार करना है, मजा आ रहा है, अचीवमेंट मिल रही है, आपको टेंशन बहुत सारी मिलती है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक आपको लाइक आप हर सब्जेक्ट में 95 आप स्कोर कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको टेंशन मिलेगी. टीचर्स अप्रोच यू एंड ओनली यू, बिकॉज ऑफकोर्स जिसके मार्क्स कम आए भाई उसमें दिमाग हो ही कैसे सकता है यार, हाउ इज दैट पॉसिबल, इट्स क्रेजी टू थिंक. उसमें दिमाग यार वो पानी भी नहीं पी सकता ढंग से यार, बिकॉज उसके मार्क्स 20 से कम आए हैं, उसके अंदर कोई स्किल नहीं हो सकती. थिंक अबाउट दैट यार. ऑफ कोर्स जिसके 95 आए वो सब कर सकता है, वो झाड़ू पोछा बर्तन, भाई साहब वो डिबेटिंग कंपटीशन भी जीत सकता है. और बाय द वे फिर बाद में ये बच्चे जब बाद में लाइफ में आते हैं, देन दे आर लाइक हाउ टू आर्टिकुलेट लाइक बेसिक स्टफ, लाइक ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, लाइक इफ यू आस्क देम ना व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट, दे लाइक बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में. बाय द वे हिंदी इंग्लिश की बात नहीं हो रही इस टाइम पे, लाइक आई डोंट केयर अगर कोई हिंदी ढंग से बोलता है, इंग्लिश आप दोनों टूटी फूटी बोलो, बट एटलीस्ट लाइक जो बात आपका थॉट का कन्वर्जन है, जो आर्टिकुलेशन है, थॉट का जो वर्ड्स में कन्वर्जन है वो होना चाहिए. वो नहीं होता जब, then there is a problem, then you are not able to communicate and stuff. What is यार like जो आपने 12 साल तक स्कूल में आपने जो घिसवाई है, more than 12 years यार, 12 तो यार फर्स्ट से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले केजी नर्सरी वगैरह आपकी डेवलपमेंट जो शुरू से हो रही है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट अगर आप बेसिक चीजें नहीं करवाए. आई बिलीव कि आर्टिकुलेशन, अच्छी आर्टिकुलेशन ना हो चाहे, बेसिक आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, बट मेनी किड्स डोंट इवन हैव दैट यार, दे जस्ट ग्रो अप विद दैट, लाइक it's some sort of ego कि भाई हमने काम किया, just look at us, how great we are, like please suck me off, I'm so good. That's the problem. Okay, I think we have talked about, like we have bitched about toppers enough.